رٹ پٹیشنز ہیں جو 3, 4, 5, 6, 7 سالوں سے زیر سماعت ہیں، جس پر فائنلی جا کر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ بنایا گیا تھا 3 رکنی، جس نے ان سارے کیسز کی سماعت کرنی تھی۔ راشد حسین کے اوپر جو چینی قونصلیٹ کا جو کیس لگا ہوا تھا، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ راشد حسین ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ اگر ہاں راشد حسین دہشت گرد تھا تو دہشت گردوں کے لیے عدالتیں بنی ہیں، وہ عدالتوں میں جو ہے دہشت گردوں کو یا مجرموں کو پیش نہیں کریں گے، پھر وہ عدالتیں بنے کیوں ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں وہاں سے کتنے لوگ غائب ہیں اور کتنے فیک انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں۔ اور جب ہم BYC والے کچھ کہتے ہیں یا تو ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہم اسلام آباد میں آئے، اس وجہ سے آئے کہ ہمارے لوگوں نے جو گناہ کیا ہے، اگر کسی نے گناہ کیا ہے عدالت میں پیش کیا جائے۔ جی، آج ہم ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کوئی فیصل آباد سے آئے ہیں، کوئی بلوچستان سے آیا ہے، کوئی کشمیر سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے کہ جب یہ ادھر پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں اس بات پہ کہ چیف جسٹس صاحب 6 مارچ 2025 سے لارجر بینچ نہیں ریکانسٹیٹیوٹ کرے اور 20 سے زائد پٹیشنز اس وقت زیر سماعت ہیں جو پینڈنگ ہے، سماعت نہیں ہو رہی، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو جب یہ فیملیز ادھر پہنچی تو اسلام آباد پولیس کے ایک افسر نے ادھر تارے لگا کے کہا کہ ہم ادھر احتجاج نہیں کر سکتے اسی جگہ پر جہاں سب احتجاج کرتے ہیں، وکلا بھی کرتی ہے، PTI بھی کرتی ہے، سب کرتی ہے، لیکن لاپتہ افراد کے لواحقین کو کہا گیا کہ آپ احتجاج ادھر نہیں کر سکتے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ اگر ان لوگوں کے لیے یہ عدالتیں نہیں بنی ہوئی تو کس کے لیے یہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں؟ یہ جو فیملیز ادھر آئی ہوئی ہیں یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ ان کی مجبوری ہے کہ انہیں ادھر آ کر منت کرنی پڑی ہے کہ ہمارے کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا تو اس وقت ان کے کیسز کی سماعت اندر چل رہی ہوتی اور یہ سماعت دیکھنے کے لیے سننے کے لیے اندر ہوتے، نہ کہ وہ باہر سڑک پر منتیں کر رہے ہوتے کہ ہماری پٹیشنز فکس کی جائے۔ کون سا طریقہ ہے انصاف دینے کا؟ کیا یہ 50 سالہ منصوبہ ہے انصاف دینے کا؟ تو ہم ایسے انصاف کو رد کرتے ہیں اور ہم ان کی چھٹیوں کے اوپر بھی ہم سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ آپ انصاف تو دیتے نہیں ہیں، پھر آپ 2 مہینے کے لیے چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور آرام کا حق پہنچتا ہے، مگر انصاف دینے کے بعد اگر آپ انصاف ہی نہیں دے رہے تو پھر کس چیز کا آرام آپ فرما رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو مجبور اور مسکین اور اوپریس فیملیز ہیں جن کی سب سے زیادہ رائٹس وائلیٹ ہوئے، یہ آپ کے پاس آئے ہیں انصاف لینے کے لیے، آپ کے دروازے پر آئے ہیں، مگر آپ نے ان کو انصاف نہیں دیا۔ یہ جنرلز کے پاس نہیں گئے، یہ GHQ نہیں گئے، یہ یہاں عدالت کے سامنے آئے ہیں۔ 2 دن جو ہے لاک اپ میں بند کیا، وہاں پر ہمیں کتنا ٹارچر کیا، تو ہم نا امید ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے کہ مگر جب میرا راشد حسین کا جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس درج کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، ان کی جانب سے نہ کوئی رسپانس آ رہا تھا، نہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ راشد حسین کہاں ہے اور کس حالات میں ہے، مگر جو ہے ان کی کیس کو ابھی کچھ دن پہلے خارج کیا۔ ہمیں صرف عدالت سے امید تھی مگر عدالت نے بھی ہمیں نا امید کر دیا، کیونکہ عدالتوں سے جب ہمارے کیس نکال دیے جائیں گے۔ کیس کس بنیاد پہ خارج کیا؟ دیکھیے کیس راشد حسین کے اوپر جو چینی قونصلیٹ کا جو کیس لگا ہوا تھا، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ راشد حسین ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ اگر ہاں راشد حسین دہشت گرد تھا تو دہشت گردوں کے لیے عدالتیں بنی ہیں، وہ عدالتوں میں جو ہے دہشت گردوں کو یا مجرموں کو پیش نہیں کریں گے، پھر وہ عدالتیں بنے کیوں ہے؟ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یہ پاکستان کے قانون، یہ پاکستان کی عدالتیں جہاں میں کھڑے ہونے کا حق نہیں دیا۔ راشد حسین ایک اسٹوڈنٹ تھا جنہیں 26 دسمبر 2018 کو متحدہ عرب امارات سے لاپتہ کیا، اور آئے دن جو ہے ان کی پیشیاں پیچھے کر رہے، آئے دن آپ ان کی ہیئرنگ کینسل کر رہے، آئے دن آپ ان کی کیس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ آخر مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ یہی کہیں کہ وہ زندہ ہے نہیں، اگر وہ زندہ نہیں تو ہم اس کی واپسی کا انتظار نہ کریں۔ ایک ماذیب نہیں، یہاں ماذیب اپنی درد نہیں لے کر آئی ہے۔ آپ ذاکر مجید کی والدہ کو جانتے ہوں گے، آپ سمیع کو جانتے ہوں گے، ان سب کا درد دیکھیے۔ خدا را اپنی عدالتوں کو عزت دے، خدا را اپنے ملک کو عزت دے، خدا را اپنی آئین کو عزت دے۔ ہمیں بلوچ پہلے انسان بعد
फांसी की, आप अदालतों में उन्हें बेशक फांसी दे दें। जब हम सवाल करने के लिए उठते हैं, जब हम बलूचिस्तान के राइट के लिए उठते हैं, तब हमें जवाब में जो है जिंदा दिखाई जाती है, जब हमें जवाब में जो है लाशें दिखाई जाती है, जो आज अदीबा को दिया है। अदीबा पिछले 10 सालों से अपने वालदा की बाजियाबी के लिए जदोजहद कर रही है। ज़हीर उनके भाई जो कि अपनी बहनों का, अपनी माँ का एक वाहिद सहारा था बाप के बाद, मगर आज उनको मसखशुदा लाश दी गई। मगर आज ज़ीशान को उनकी जवाब में 2 गोलियां देकर उनको रुखसत किया इस वतन से। आप बताएं कि हम सवाल करें किससे करें? आपकी अदालतों ने हमें रिजेक्ट कर दिया, आपके इस मुल्क के आईजीओ ने तो हमें दहशतगर्द करार कर दिया। हम बात करें, हम बताएं किसको बताएं? हमारी जिंदगी आपने मुश्किलात में डाली, आपने हमें जो। और मैं इस बात का सवाल करना चाहती हूँ सब इदारों से जो असर रसूख रखते हैं कि हम सब चाहते हैं कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, लेकिन जो लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं और जो इस बात की कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो इस मुल्क का फ्यूचर बदलें, उन्हीं को ही पकड़ के गायब किया जाता है। उनका और क्या गुनाह बताते हैं? कोई भी गुनाह नहीं बताते। हमें 9 साल से पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। हम अदालतों में आते हैं तो आपको पता है कि अदालत के साथ ये किया है कि जी बेंच ही तोड़ दिया। गिनती नहीं कर सकते हैं वहाँ से कितने लोग गायब है और कितने फेक इनकाउंटर में मारे गए हैं। और जब हम BYC वाले कुछ कहते हैं या तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने देखा हम इस्लामाबाद में आए, इस वजह से आए कि हमारे लोगों ने जो गुनाह किया है, अगर किसी ने गुनाह किया है अदालत में पेश किया जाए, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई हो और हमें भी जेलों में डाला गया। अभी हमारे लीडर BYC के लीडर डॉक्टर महरंग बलूच 3 महीने से अपने साथियों के साथ होता जेल में है और अभी तक रियासत हमें ये नहीं बता सकते कि किस वजह से लापता, किस वजह से जेल में डाला गया है डॉक्टर महरंग को। 3 MPO तो 3 महीने तक ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने अभी तक कंप्लीट हुए, अभी तक हमें पता नहीं है कि वो लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि डॉक्टर महरंग ने गुनाह किया है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। मीडिया में आके बताते हैं कि डॉक्टर ने ये गुनाह किया है, BYC ने ये किया है, वो किया है, लेकिन अगर सबूत है तो कोर्ट में पेश करे। अगर आप लोगों के पास कोई भी सबूत है कि BYC ने रियासत को जो नुकसान पहुँचाया है, आप हमें बता दें, क्योंकि हम लोगों ने हक की बात की और बलूचिस्तान में जो नस्ल खुशी हो रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। और इस वजह से BYC पे जो इल्ज़ाम लगाया है या डॉक्टर महरंग पे इल्ज़ाम लगाया है, हम सिर्फ यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि अगर हमारे लोगों ने, अगर डॉक्टर महरंग या BYC किसी भी फर्द या कि जो लोग लापता हुए हैं, जो फेक इनकाउंटर में मारे गए हैं, इन लोगों ने कुछ भी गलत किया है तो अदालत में पेश करें। वो अदालतें किस बुनियाद पे बनाए हैं आप लोगों ने? राशिद हुसैन अगर इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है उन्होंने, अगर वो इस मुल्क में दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है, वो दहशतगर्द है, तो उन्हें अदालतों में पेश करें, अदालत में लेकर आए। और जब हम जो है अपने लोगों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए अदालतों से मुतालबा करते हैं तो वहाँ से हमारी केस खारिज कर देते हैं और उनके साथ साथ उनके लवाहिकीन को भी, यानी हमें भी दहशतगर्द करार किया जाता है। अभी मतलब आप एक बार फिर से उम्मीद लेकर इस्लामाबाद आई है, क्योंकि पिछली बार आप लोग नाउमीद होकर यहाँ पे गए थे। डॉक्टर महरंग की क़यादत में जब आप आए। जी हाँ, हम एक दफ़ा फिर उम्मीद करके यहाँ आते, क्योंकि बलूचिस्तान में जब हम रोडों पर निकलते तो हमें जो है गोलियों से जो है ख़त्म किया जाता है। हम यहाँ आते एक बड़ी जो है उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचते हैं, क्या पता इस दफ़ा जो है ये इदारा हमारे बात सुने, हमें बताएं कि आप लोगों के लोग कहाँ हैं, आप लोगों के लोग किस जुर्म में जो है कैद है, हमें इतना बस बताया जाए। मगर जब हम यहाँ आते हैं, हमारे आने से, हमारे पहुँचने से पहले यहाँ की इंतज़ामिया को बताया जाता है कि बलूच का जो प्रोटेस्ट है, बलूच ख़वातीन यहाँ आए तो आप किसी भी सूरत में उनको जो है प्रोटेस्ट करने नहीं देना। देखिए, हमारा सिर्फ एक सिंपल सा प्रोटेस्ट होता है, एक सिंपल सा मुतालबा होता है, हमारे हाथ में सिर्फ जो तस्वीरें होते हैं वो आकर हमें जो है। एडवोकेट हबीब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर एहतजाज चल रहा है, मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन आए हैं, उनमें से बलूचिस्तान के लवाहिकीन भी है, खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क से आए हुए हैं। उनका क्या मुतालबा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, एक लार्जर बेंच कायम हुई थी, तो बाद में उसमें से एक जज साहब ने खुद को रिक्यूज़ कर दिया था उस बेंच से, तो फिर उसके बाद वो बेंच 6 मार्च 2025 को टूटा और उसके बाद से अब तक वो बेंच दोबारा तश्कील नहीं दी गई है। मिसिंग पर्सनस के लिए जी, उसमें तकरीबन 20 के करीब पिटीशंस अभी तक के पड़ी हुई हैं और ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई हैं। तो इन फैमिलीज़ का कहना है कि कम से कम उस बेंच को दोबारा
दोबारा वो बेंच बनाया जाए और समाअतों के लिए इन पिटिशंस को मुकर्रर किया जाए कि अब बजाय कि ये अंदर अदालत में होते प्रोसीडिंग्स चल रही होती और समाअत हो रही होती, ये फैमिलीज़ जो है यहाँ अदालत के बाहर खड़ी हैं एहतजाज कर रही है सिर्फ इस बिना पे कि उनके जो है पिटिशंस अभी तक के अदालत के सामने फिक्स नहीं हो रही, अभी तक के बेंच नहीं बन पा रहा है। रिट पिटिशंस हैं जो 3, 4, 5, 6, 7 सालों से ज़ेर समाअत है, जिस पर फाइनली जाकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में एक लार्जर बेंच बनाया गया था 3 रुकनी, जिसने इन सारे केसेस की समाअत करनी थी। उस बेंच में के जो तीसरे रुकन थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जो ख़ुद भी बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो पहले उस बेंच में शरीक हुए, शामिल हुए, हियरिंग्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सुना मैटर को, और 6 मार्च को वो जज साहब कहते हैं कि जी मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ। तो 6 मार्च से आज तक इन फैमिलीज़ ने, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बार बार चीफ जस्टिस साहब को खतूत लिखे हैं। उनके सेक्रेटरी साहब से मैं ख़ुद दफ्तर में जाकर मिली हूँ एटलीस्ट 3 ओकेजन्स पर, रिक्वेस्ट करने के लिए कि काइंडली लार्जर बेंच या तो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, या जो 2 जजेस उस बेंच में रह गए हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब, उनका एक स्पेशल डीबी बनाकर ये केसेस समाअत के लिए जल्द से जल्द मुकर्रर किए जाएं। ये छोटा सा मुतालबा है जो 1 पॉइंट एजेंडा है, जिसकी वजह से ये फैमिलीज़ बलूचिस्तान, KP, सिंध, हर जगह से, पंजाब के दूर दराज इलाकों से इधर आज सफ़र करके आई है। तो बहुत अफसोस की बात है कि इन्हें इस तरह आज आकर एहतजाज करना पड़ा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ पहुंची होगी अंदर चीफ जस्टिस साहब को, जो इन पर थोड़ा सा रहम करके इनके केसेस फिक्स कर देंगे समाअत के लिए। ये अगर इस तरह के हालात जो बन रहे हैं अदालतों में, ये 26वीं आईनी तरमीम जब लाई गई थी, ये उसका नतीजा है जो हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम आप कह लें एक फ़ौजी हमला था हमारे अदालती निज़ाम पर। वो हमले के असरात हम आज तक देख रहे हैं। ये उस वक्त भी झूठ बोला गया कि जी केसेस के बैकलॉग को क्लियर करने के लिए अब 26वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, और आप देख लें कि केसेस का कितना बैकलॉग है सिर्फ इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहादुर 5 जजेस थे, उनके सामने कोई इस तरह के केसेस नहीं मुकर्रर करते समाअत के लिए, सारे अपने सामने लगाते हैं या उन टाउट जजेस के सामने जो इंसाफ करने की काबिलियत नहीं रखते। जो अच्छे बच्चे होते हैं। अच्छे बच्चे फौजियों के लिए शायद हो, हमारे लिए वो अच्छे बच्चे। अच्छा मैडम, यहाँ पे अभी जैसे आपने खुद कहा बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और सिंध से, मतलब पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लापता अफराद के लवाहिकीन आए। अगर हम बलूचिस्तान के स्पेसिफिकली देखें, डॉक्टर मारंग की क़यादत में यहाँ पर आए थे, फिर उनके साथ जो सलूक यहाँ पे किया गया था, और उसके बाद अब ये लोग फिर यहाँ पे अदालतों में आ रहे हैं, तो इससे रियासत को सीखना चाहिए या उनको इसी तरह जो है वो साइड लाइन करना चाहिए, ताकि वो फिर मज़ीद जो है इसके नताइज जो है वो गलत सामने आए। देखिए, एक लॉजिकल सी बात है कि अगर आप अपने आइन को नहीं मानते, अपने कानून को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और आप लोगों को कह रहे हैं कि अदालतों का रुख ना करें, पुरअमन एहतजाज ना करें, तो क्या वो हथियार उठा लें? आप उनके लिए कौन सा रास्ता छोड़ रहे हैं? ये लोग फिर भी पुरअमन है, ये फिर भी कहते हैं कि हमारे मुतालबात, हम आइन के दायरे में रहते हुए उन मुतालबात का इजहार करते हैं, उनका डिमांड करते हैं। लेकिन ये जो रियासत है ये चाहती है कि एनार्की हो, ये चाहती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि जितनी देर खसूसन बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट और जंग रहेगा, उतनी देर फ़ौज का कब्ज़ा बरकरार रहेगा, उतनी देर सिविलियन स्ट्रक्चर्स नहीं इस्टेब्लिश होंगे, और उतना ज़्यादा पैसे और वसाइल फ़ौज को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि बलूचिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बलूचों को नहीं बेनिफिट कर रहा, वो सिर्फ इस फ़ौज को बेनिफिट कर रहे हैं। अभी एक और बलूचिस्तान में एक्ट पास हुआ है, टेररिज्म एक्ट, जिसमें वो कहते हैं कि हम एक शक की बुनियाद पर किसी को उठा सकते हैं और उसको 60 दिनों के लिए रख सकते हैं। इसको आप किस नज़र से? इसको मैं इस नज़र से देखती हूँ कि बलूचिस्तान ने फाइनली इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है जो पिछले 40 सालों से बलूचिस्तान की हकीकत थी। ये कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से बलूचिस्तान में यही सिचुएशन थी कि लोगों को जबरन लापता करके उनकी मशशुदा लाशें फेंकी जा रही थी, उन्हें 10 साल, 15 साल, 20 साल जबरन अगवा रखा गया स्टेट के टॉर्चर सेल्स में। तो ये कानून लाना कि जी इलीगल डिटेंशन को हम लीगलाइज करें, उससे बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो हकीकत हमेशा से ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।